میرا شوہر ریحان مجھے نماز اور قرآن نہیں پڑھنے دیتا تھا اور مجھ پر ظلم کرتا تھا، مگر آج جب وہ گھر آیا تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، میرے ساتھ وضو کیا اور ہم نے مل کر نماز پڑھی اور قرآن پڑھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اب میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا، اور پھر ہم سو گئے۔ میں حیران تھی کہ اسے آج ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے ریحان کو جگایا، مگر اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا، چپ کر کے سو جاؤ، جو کوئی بھی ہوگا بعد میں آ جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ اچانک دروازہ زور سے بجنے لگا اور مجھے لگا جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ میں نے دیکھا تو ریحان گہری نیند میں تھا، وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ میں چپکے سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، پولیس، جلدی سے دروازہ کھولو۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے دو پولیس والے کھڑے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور ایک ایمبولینس باہر کھڑی تھی جس میں کسی کی میت پڑی تھی۔ پولیس والے نے بڑے آرام سے کہا، بی بی، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا شوہر تو اندر کمرے میں سویا ہوا ہے۔ پولیس والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے جلدی سے پیچھے موڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں ریحان سویا ہوا تھا، مگر اب مجھے چارپائی خالی محسوس ہوئی۔ ابھی تو وہ میرے ساتھ تھا، میں نے اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کی تھی، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں دوڑ کر کمرے کے اندر گئی۔ بستر بے ترتیب تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے چھوڑا ہو۔ تکیے پر اس کی خوشبو تھی، مگر وہ خود وہاں نہیں تھا۔ میں واپس دروازے کی طرف آئی اور تقریباً چیخ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پولیس والوں نے ایک اسٹریچر پر رکھا ہوا جنازہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پولیس والے نے جب کفن کا کونا ہٹایا تو میری سانس رک گئی۔ کفن کے نیچے ریحان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بے یقینی سے سر ہلایا، یہ ریحان نہیں ہے۔ یہ سن کر پولیس والا چونک گیا اور بولا، میڈم، اب کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا، میں کیا کہہ رہی ہوں میں خود بھی نہیں جانتی۔ میں نے آخری بار کمرے کی طرف دیکھا، پھر لاش کی طرف۔ اگر وہ یہاں نہیں تو وہ کہاں گیا؟ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا، جیسے کسی جلتی ہوئی چیز کو چھو لیا ہو۔ میری نند مریم بھیڑ میں سے آگے آئی اور بولی، ریحان اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ کمرے میں تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہر کوئی مجھے ترس کھا کر دیکھ رہا تھا، جیسے میں حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی ہوں۔ میری ساس، جو اب تک رو رہی تھیں، میری طرف پلٹی اور کہا، ہنا بیٹا، میں جانتی ہوں یہ تکلیف دہ ہے، مگر تمہیں حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا شوہر ہے۔ مگر میں نے بے بسی سے کہا، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ پولیس والے نے کہا، میڈم، اب صدمے میں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اندر جا کر آرام کریں۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی گھر کے اندر آئی۔ میرے دماغ میں دھند سی چھا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ریحان میرے ساتھ تھا، میں نے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا، اس کی خوشبو میرے ارد گرد تھی، اور اب وہ سب کہہ رہے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو مجھے ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ یہ ریحان کے پرفیوم کی خوشبو تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اگر وہ یہاں نہیں تھا تو یہ خوشبو کیوں باقی تھی؟ میری نظریں الماری پر رک گئیں اور میں نے اسے کھولا۔ اندر وہی کپڑے ترتیب سے رکھے تھے، مگر ایک چیز زمین پر گری ہوئی تھی۔ یہ ریحان کا بٹوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بٹوا اٹھایا اور کھولا۔ اندر اس کا شناختی کارڈ، کچھ پیسے اور ایک ہوٹل کی رسید تھی۔ میں نے جلدی سے رسید نکالی اور اس پر لکھی ہوئی تاریخ پڑھی۔ یہ تو اس کی موت کے بعد کی تاریخ تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ریحان کی موت کے بعد اس کا بٹوا کسی ہوٹل میں کیسے جا سکتا تھا؟
क्या वो वाकई मरा था या फिर वो जिंदा था? मैंने रस्सी को दोबारा गौर से देखा, जैसे मेरी आंखें कोई धोखा कर रही हों। तारीख वाज़े थी, रेहान की मौत के बाद की। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने जल्दी से बटुआ और रसीद अपने दोपट्टे में छुपा ली। ये सबूत था और मैं इसे किसी को नहीं दिखा सकती थी कि मुझे इस होटल में जाना था जहां से ये रसीद मिली थी। ये अब मेरे लिए महज एक इत्तेफाक न था, न ही कोई वहम। मैं जानती थी कि मैं पागल नहीं हूं। अगले दिन जब सब जोहर की नमाज के बाद कैलूला कर रहे थे, मैं चुपके से अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। होटल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने अंदर जाकर रिसेप्शन पर मौजूद आदमी से पूछा, ये कमरा कुन के नाम पर बिक हुआ था? आदमी ने एक नजर रसीद पर डाली और फिर मुझ पर, मैडम, ये मालूमात हम किसी को नहीं दे सकते। मैंने कहा, बरा करम, ये बहुत जरूरी है। ये मेरे शौहर की चीज है और वो इंतकाल कर चुके हैं। आदमी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सरगोशी में बोला, ये कमरा एक शख्स के नाम पर बिक हुआ था, नदीम खान। नदीम खान ये रेहान के सबसे करीबी दोस्त का नाम था। ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। वही नदीम जो रेहान के साथ हर वक्त रहता था, इसका राजदार था, जिसे मैं हमेशा एक मुख्तलिफ दोस्त समझती आई थी। अगर होटल का कमरा नदीम के नाम पर बिक था तो इसका मतलब था कि वो रेहान की मौत के बाद भी किसी न किसी तरह इस मामले में शामिल था। क्या वो इस साजिश में शामिल था? मेरा दिमाग सुन होने लगा। मैंने नदीम से मिलने का फैसला किया। मैंने इसे फोन किया और कहा कि मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर घर आने के लिए राजी हो गया। जब मैं इसके घर पहुंची तो मैंने सीधे इसकी आंखों में देखा और पूछा, रेहान की मौत के बाद तुम होटल में क्यों रुके थे? मैंने रसीद इसके सामने कर दी। नदीम का रंग जर्द पड़ गया। हिना, तुम वहां क्यों गईं? वो घबरा कर बोला। मैंने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, नदीम, क्या रेहान जिंदा है? नदीम की आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे मैंने इसका सबसे बड़ा राज खोल दिया हो। इसके चेहरे पर जो हैरत और घबराहट थी, उसने मेरे तमाम शक व शुबहात को हकीकत में बदल दिया। जवाब दो नदीम, रेहान जिंदा है ना? नदीम ने नजरें चरा ली। उसने एक गहरी सांस ली और बेबसी से मेरी तरफ देखा। हिना, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? मैंने सर हिलाया। रेहान मरा नहीं था हिना। उसने खुद अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। मेरा दिल धड़कना भूल गया। ये तुम क्या कह रहे हो? नदीम, मेरी आवाज सरगोशी में बदल गई। नदीम ने सर झुका लिया और बोला, रेहान जिंदा है। हिना, ये सब एक प्लान था। क्या मतलब प्लान? मैंने उलझकर पूछा। नदीम ने मेरी आंखों में झांका और कहा, रेहान ने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पागल साबित किया जा सके। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। क्या? मेरी आवाज गिले में फंस गई। रेहान ने मेरी जहनी हालत पर शक करवाने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। नदीम ने आस्ते से सर हिलाया। रेहान किसी और औरत के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। वो तलाक नहीं देना चाहता था क्योंकि इसका इमेज खराब हो सकता था। उसने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची। पुलिस, जनाजा, सब कुछ एक मंसूबा था। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। रेहान मरा नहीं था। वो मुझे पागल साबित करके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। नदीम ने मुझे बताया कि रेहान एक हफ्ते के अंदर मुल्क छोड़ने वाला है और वो इस वक्त शहर से बाहर एक फार्म हाउस में छुपा हुआ है। मुझे इसे पकड़ना था। अपने हाथों से रात के वक्त में और नदीम फार्म हाउस पहुंचे। दरवाजा बंद था, मगर अंदर हल्की रोशनी नजर आ रही थी। हम अंदर दाखिल हुए तो सोफे पर बैठा हुआ रेहान सामने था, जिंदा, महफूज और बेखौफ। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर हैरानी उभरी, मगर फिर वो जल्द ही नॉर्मल हो गया। तो आखिरकार तुम आ ही गई, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे अंदाजा था कि तुम्हें हकीकत खोजने की जिद होगी। ये सब क्यों किया रेहान? मैंने दांत पीसते हुए कहा। तुमने मुझे पागल साबित करने की कोशिश क्यों की?
क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रही थी। हिना, उसने बेशर्मी से मुस्कुरा कर कहा। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए थी। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन उसके सामने कर दी। मैंने पुलिस को पैगाम भेजा था और उनका जवाब आ चुका था, हम रास्ते में हैं। ये रेहान के चेहरे से रंग उड़ गया। ये किया तुमने? इसकी आवाज में कपकपाहट थी। उसने नदीम की तरफ देखा। नदीम, तुमने धोखा दिया मुझे। नदीम ने गहरी सांस ली और कहा, ये धोखा नहीं रेहान, ये सिर्फ इंसाफ है। रेहान दरवाजे की तरफ भागा, मगर मैंने दरवाजे की चाबी पहले ही निकाल कर अपने पास रख ली थी। खोलो ये दरवाजा। हिना, वो गुस्से से गरज कर बोला। मैंने सुकून से चाबी अपने हाथ में घुमाई। अब कोई रास्ता नहीं रेहान, अब तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लिए बनती है। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। रेहान की आंखों में खौफ उभर आया। वो जान चुका था कि अब खेल वाकई खत्म हो चुका है। मैंने दरवाजा खोला और पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हो गए। मैंने सीधा रेहान की तरफ इशारा किया। यह है वो शख्स जिसने अपनी मौत का ड्रामा करके धोखा दिया। अफसर ने रेहान को सख्त नजरों से घूरा और कहा, मिस्टर रेहान, आपको धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश के तहत गिरफ्तार किया जाता है। रेहान ने मुड़कर मुझे देखा। इसकी आंखों में अब बेबसी थी और एक हारे हुए शख्स में रेहान की तरफ मुड़ी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और नाकामी थी। वो शख्स जो मुझे जिंदगी भर अपने कदमों तले रोंदने और अपने रास्ते से हटाने का ख्वाब देखता था, आज मेरी वजह से अपने ही जाल में फंसा हुआ था। पुलिस वाले इसे हथकड़ियां पहना रहे थे। इसकी आंखों में अब वो तकब्बुर नहीं था, बल्कि एक गहरा पछतावा और खौफ था। शायद इसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसका खेल हमेशा नहीं चल सकता। मैंने एक लंबी सांस ली। ये कोई जीत नहीं थी, बल्कि एक तवील और तकलीफ दे सफर का इख्तिताम था। वो शख्स जो मुझे नमाज और कुरान से रोकता था, जिसने मुझे पागल साबित करने के लिए अपनी ही मौत का ड्रामा रचाया था, आज अपने ही गुनाहों की वजह से पकड़ा जा चुका था। इसका वहम था कि वो मुझे तोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेगा, मगर उसने शायद ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब मेरे दिल में ना नफरत थी और ना ही कोई इंतकाम की ख्वाहिश, सिर्फ एक सुकून था। ये सुकून इस हकीकत का था कि सच हमेशा सामने आ जाता है, चाहे इसे कितनी ही गहराई में दफन करने की कोशिश की जाए। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दूर देखा था। मैंने अपने शौहर की मौत का गम मनाया था, जबकि वो जिंदा था। मैंने इसकी मौत पर बहने वाले हर आंसू का हिसाब लिया था, और आज वो हिसाब बराबर हो चुका था। मैंने नदीम की तरफ देखा, जिसने सच्चाई का साथ दिया था। उसने मुझसे नजरें मिलाएं और सर झुकाकर कहा, मुझे अफसोस है। हिना, मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। कोई बात नहीं नदीम, तुमने आखिरकार सच का साथ दिया। पुलिस वाले रेहान को बाहर लेकर चले गए। मैंने बाहर आकर देखा तो मेरे ससुराल वाले और मोहल्ले के लोग भी जमा थे। सबके चेहरों पर शर्मिंदगी और हैरानी थी। उन्हें मालूम हो चुका था कि रेहान ने क्या किया था। सब ने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी आंखों में जवाब तलाश कर रहे हों, मगर मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती थी। मेरे दिल का बोझ अब हल्का हो चुका था। मैं अपने घर की तरफ चली गई, जहां कुछ लम्हे पहले एक ड्रामा खत्म हुआ था। अब मैं अकेली थी, मगर आजाद थी। मेरी जिंदगी में अब रेहान की कोई गिट्टेन नहीं थी। वो शख्स जिसने मुझे कमजोर समझा था, आज वो खुद बेबस था। मैंने अंदर आकर अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने मुझे इस मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा था। मेरी जिंदगी में अब एक नया आगाज होने वाला था। ये मेरे ईमान की जीत थी, मेरी साबित कदमी की फतह थी, जिसके सामने हर झूठ, हर साजिश और हर ड्रामा बेनकाब हो चुका था। ये सब एक डरावना ख्वाब था, मगर अब आंखें खिल चुकी थी। मैंने इस कमरे में कदम रखा जहां कुछ लम्हे पहले रेहान ने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की थी। इसका बिस्तर बेतरतीब था, जैसे वो अभी अभी उठकर गया हो, मगर अब वहां सिर्फ एक तल्ख याद बाकी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की पहली किरणें उम्मीद की एक नई लकीर लेकर आ रही थीं। मैंने एक गहरा सांस लिया।
मेरी जिंदगी का एक बाब बंद हो चुका था और एक नया बाब खिलने वाला था। ये बाब मेरी अपनी ताकत, मेरे ईमान और मेरी हिम्मत का था। मैं अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरे रब ने मुझे इस आजमाइश से निकालकर एक नई जिंदगी अता की है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा था। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक मजबूत इरादा था। मैंने कमरे में मौजूद अपने मोबाइल से कुरान खोला। इसकी पहली आयत पढ़ते ही मेरे दिल को सुकून महसूस हुआ। रेहान ने मुझे कभी नमाज और कुरान नहीं पढ़ने दिया था, मगर अब ये मेरा सबसे बड़ा सहारा था। क्या तुम सब कुछ भूलकर बस इस एक इंसान का गम मनाओगी? आपने रब की दी हुई जिंदगी को दोबारा से जीना सीखोगी। मेरे अंदर की आवाज ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। मैंने मुस्कुराकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया। अब से मेरी जिंदगी में हर कदम मेरा अपना होगा और हर फैसला मेरे ईमान का अक्स होगा। अल्लाह ताला हर इंसान की जिंदगी में एक रास्ता मुतय्यन करता है। वो रास्ता कभी आसान होता है और कभी बहुत मुश्किल, मगर अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालकर कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब भी कोई बंदा ईमान की मजबूती के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह उसके लिए तमाम रास्ते खोल देता है। बेशक अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा करता है। इस पैगाम में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है अपने रब की तरफ रुजू करना। सजदा रेज होकर अपने रब से दुआ मांगें। यकीन रखें कि अल्लाह आपकी सुन रहा है और एक बेहतरीन हल जरूर निकालेगा। कभी मायूस ना हूं, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अपने दिल में ईमान की शमा को रोशन रखें और हर मुश्किल से गुजरने की हिम्मत पैदा करें। आपका ईमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।